Hello students, okay, how are you? I hope you will be fine, safe at home, okay? Stay safe and stay at home, okay? But now we have to start our education also, study also. So from today we are going to start grammar revision, grammar lecture, okay? First topic we will see articles. You know very well that articles are three, a and the, but indefinite article is a and and definite article is the, okay? And also you know very well that a and an, okay? An is used before vowel a, e, I, o, u, and a is used other consonants, okay? And definite article is used the before the definite things like the sun, the moon, etc. okay? और अब ए एंड द के एग्जांपल्स आपको फोटोग्राफ के द्वारा भेजे जाएंगे, तो वो एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने हैं. इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से पता है. फिर भी मैं एक दो एग्जांपल आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ. फर्स्ट एग्जांपल, there is okay. Now we have to fill in the blanks with a and the a or an or the, okay? There is dash dog in dash pool, okay? So there is a dog in the pool, okay? So here pool is a definite noun, so we have to use the in this blank. And dog is a common noun, it is not vowel, it is consonant, begin from D, okay? D is not a vowel, D is a consonant, इसीलिए उसके पहले हमें A लिखना है, okay? Now let's take second example. There is advertisement on radio, okay? So there is dash advertisement on radio, okay? Advertisement, a is not consonant, it is vowel, okay? तो इसीलिए उसके पहले आएगा and. And radio is a definite noun, okay? So उसके पहले आएगा the. So there is an advertisement on the radio. मुझे ऐसा लगता है कि ये दो एग्जाम्पल आपके लिए काफी है, क्योंकि आर्टिकल्स बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है या हार्ड टॉपिक नहीं है कि जो आपको हुआ नहीं है. तो जस्ट हम ये छोटे छोटे जो टॉपिक है उन टॉपिक्स को हम रिवाइज करने जा रहे हैं, ओके? सो इसका होमवर्क आपको दिया जाएगा, तो आपको उसे सॉल्व करना है और आंसर सर को भेजना है, ओके? ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज prepositions, okay? You know prepositions very well: in, on, above, for, of, between, among, etc. So what is preposition? Preposition is a word or phrase that connects noun or pronoun and shows its relation to the other words in the sentences. That word is called prepositions, okay? Now let's take 2 or 3 examples for prepositions. You know very well prepositions. Definition is not important, but fill in the blanks with correct definition preposition is important, okay? So see the examples. First,
its cover. The bracelet was securely dashed its cover. Okay, the bracelet was securely dashed its cover. The preposition यहाँ आएगा in. Okay, in its cover. Second example, Alka sat dash her sick child. Alka sat her sick child. क्या आएगा यहाँ preposition? यहाँ prepositions आएगा beside. Alka sat beside her sick child. Okay. Third example. Nita and her family live dash a house. Nita and her family live dash our house. Nita and family live near our house. Okay, so these are the three examples of prepositions. You can solve many examples. As you know, the topic is very simple. Articles and prepositions, both topics are very simple. दोनों टॉपिक बहुत ही सिंपल है. आपको बहुत बार ये टॉपिक सिखाए गए हैं, आपने रिवाइज भी किए गए, लेकिन अब हम बेसिक से रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस दोनों हमने टॉपिक को रिवाइज किया है. ओके ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टॉपिक इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स. एज आई अर्लियर सेड, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से पता है, सफिक्स और प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या है? जो हम किसी भी वर्ड के पहले जो कुछ वर्ड्स लगाते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं. एंड सफिक्स क्या है? जो वर्ड्स के बाद में, वर्ड्स दैट आर नॉट डिराइव्ड, ओके, कंपाउंडेड और डेवलप्ड फ्रॉम अदर वर्ड्स दैट आर कॉल्ड प्राइमरी वर्ड्स एंड सेकेंडरी वर्ड्स. प्राइमरी वर्ड्स और सेकेंडरी वर्ड्स में प्रीफिक्स और सफिक्स आते हैं. जैसे कि प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स इज अ डिफाइंड वर्ड, उसको डिफाइन किया जाता है किसी भी वर्ड से. प्रीफिक्स डिफाइंड वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड विच इज प्लेस एट द बिगिनिंग, जो वर्ड के शुरुआत में डिफाइन किया जाता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं. बिगिनिंग ऑफ अ प्राइमरी वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड. मतलब जैसे कि किसी भी वर्ड के पहले हम प्रीफिक्स लगाते हैं, तो प्रीफिक्स लगाने के बाद एक नया वर्ड वो तैयार हो जाता है. दैट इज बाय ज्वाइनिंग प्रीफिक्स वी मेक न्यू वर्ड. ओके, तो लेट्स टेक एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज करप्शन. ओके, एग्जांपल हमने लिया है करप्शन. तो इसको अगर हम एंटी प्रीफिक्स लगाते हैं तो उसका हो जाएगा एंटी करप्शन. क्लियर? देन सेकेंड वर्ड इज एग्री, एंड यू नो वेरी वेल दैट वी पुट दिस एट द बिगिनिंग ऑफ द एग्री और न्यू वर्ड तैयार हो जाएगा डिसएग्री. ओके, थर्ड एग्जांपल एक्शन. एक्शन के पहले हम लिखेंगे इंटर, या इंटर भी चलेगा या इनएक्शन भी चलेगा. इंटर एक्शन या इनएक्शन, दो वर्ड इसके तैयार हो सकते हैं, इंटर एक्शन या इनएक्शन. ओके, क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल, these are the examples of prefix. Okay, first prefix. Now suffix. Okay, अब suffix क्या है? Suffix is a also defined word or part of the word, but it is placed at the end of the word, not the beginning of the word. Prefix शब्द के
पहले, वर्ड के पहले उसको प्लेस किया जाता है, और सफिक्स शब्द के बाद में, एट द एंड ऑफ द वर्ड उसको प्लेस किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम पहला लेंगे, कंसीडर, और उसे हम TION सफिक्स लगाएंगे तो उसका हो जाएगा कंसिडरेशन। ओके, देन सेकेंड एग्जाम्पल, फेथ, उसे हम सफिक्स लगाएंगे FUL, faithful. There are so many prefixes and suffixes. सफिक्स या प्रीफिक्स कोई एक शब्द नहीं है, जैसे कि TION या FUL, बहुत सारे सफिक्स है और प्रीफिक्स भी है जिसको हमको स्टडी करना पड़ेगा। थर्ड एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल लिया हमने बैंक, उसको हमने सफिक्स लगाया ING और वर्ड तैयार हो गया बैंकिंग। ओके, सो दिस इज सफिक्स। ओके, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स में क्या डिफरेंस है। अगेन आई रिपीट, प्रीफिक्स जो है वो शब्द के पहले, एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड प्लेस किया जाता है, और सफिक्स जो है वो वर्ड के एंड में प्लेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सफिक्स। ओके